Hello students, we'll be discussing here real sequence, basic understanding of sequence. Second topic जो है वो examples of some sequence. Second topic में examples discuss होगा. Third topic is that the range of a sequence, and fourth topic is bounds of a sequence. And in the last we will discuss convergence of sequence. So, okay, तो समझिए a sequence is a arrangement or list of numbers is a list arrangements or list of numbers in a order. Okay, in a order. A sequence is an arrangement or list of numbers in a order. That means, okay, you can say S1, S2, S3, S4, like that, Sn, okay, like that. So this is a sequence. This is a list of some numbers S1, S2, S3, S4, Sn. These all are real number. हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है या रियल नंबर नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं. So this is a list of some numbers. A sequence is it. But what is real sequence? That is another thing. रियल सीक्वेंस में जो नंबर होगा वो रियल नंबर होना पड़ेगा. S1, S2, S3 दिस ऑल आर अगर रियल नंबर है तो दैट विल बी कॉल्ड रियल सीक्वेंस. तो यहाँ पे देखो ना, a real sequence is a function whose domain is the set of natural number. Domain is the set of natural numbers and range is the set of real number. That means a real sequence is a function from the set n, capital N to R. So from the set of natural number to the set of real number. Okay. So Sn is a function from the set of natural number n to the set of real number R. This is a real sequence. So Sn, this is denoted as this real sequence. इस Sn में ऐसा ये ब्रैकेट देना जरूरी है. तो यहाँ पे Sn, okay, ये, okay. Without this bracket, Sn represent the n term of the sequence. The numbers are called members of the sequence. Okay. Okay. For this is a real sequence. Okay, this is the basis understanding. अभी second में क्या है? Examples of real sequence. ये नेचुरल नंबर के साथ कैसे कनेक्टेड है ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ. ये अगर टर्म S1 है, ये टर्म S2 है, ये टर्म S3 है, ये टर्म S4 है, लाइक दैट, ये टर्म Sn है, एंड दिस इज इनफाइनाइट. ओके, बात ऐसा है कि ये सीक्वेंस में भी फाइनाइट और में भी इनफाइनाइट, ये बात भी लिखना जरूरी है. ये सीक्वेंस में भी फाइनाइट और में भी इनफाइनाइट. A sequence may be finite or may be infinite.
जो मन चाहे, जैसा मन चाहे आप बना सकते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस भी बना सकते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस भी बना सकते हैं। So S1, S2, this is okay. This is a sequence. Listen. So this sequence is represented as Sn such that. Okay. This is the sequence. Okay. Why it is connected with natural number? Why it is the function from the set natural number to the set real number? Here Sn are here Sn are real number. N is belongs to natural number. जैसे ही natural number से एक function है, natural number is first term of the natural number is 1, second term is 2, third term is 3, fourth term is 4. Okay, so 1 के साथ जो corresponding number है वो S1 है. So there is a 1-to-1 correspondence with the natural number to the set of real number. देखिए 2 के साथ connected है S2, 3 के लिए जो number element है that means 1 का image है S1, 2 का image है S2, 3 का image है S3 and 4 का image है इस 4 का image जो है S4 like that. ऐसे ऐसे करके जाके बाद में क्या आएगा नेचुरल नंबर n होगा. सो स्मॉल n का जो इमेज है वो Sn होगा like okay. सो ऐसे नेचुरल नंबर के साथ कनेक्टेड है. सो दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर. नाउ वी विल डिस्कस some examples. Okay, some examples लेते हैं. मान लीजिए okay the set capital okay 1 2 3 4 this is and n belongs to n. This is 1 2 3 4 dot n. This is also a sequence. This is also a sequence. Example 1 to ये sequence Sn equal अगर ऐसा है तो ये भी एक sequence है 1 2 3 4. This is sequence of natural number. Okay, these are the natural number. All are natural number. So this is a sequence. We can represent this sequence like this. Sn is equal to n. Okay, where n is belongs to capital N. Okay, this is that. We can similarly Sn is equal to n. यहाँ पे भी ऐसा लगा सकता हूँ. Okay, Sn is equal to n. नहीं तो ये सिंबल नहीं होगा तो ये Sn जो है वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा. इसीलिए ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ, मिडिल ब्रैकेट. सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने ऐसा एक सीक्वेंस बनाया Sn. वहाँ पे मैंने सिर्फ 1 रखा, -1 रखा, 1 रखा, फिर से -1 रखा, मतलब ऐसे रिपीट कर रहा हूँ. That means 1 -1 1 -1 -1. So this sequence can be written as Sn is equal -1 to the power n. N belongs to natural number because -1 to the power 1. That means -1 ये यहाँ पे -1 लगाना था. -1 1 -1 1 -1 1. Okay, मैंने इसको -1 कर दिया. मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस सीक्वेंस बना रहा हूँ. देखिए ये -1 दे दिया, उसके बाद 1 दे दिया, उसके बाद -1 दिया, फिर से 1 दिया, फिर से -1. सो n is equal to 1 it will be -1, n is equal to it will be 1, n is equal to 3 it will be -1, n is equal to 4 it will be 1. Okay, so this is a sequence. This is also an infinite sequence. Okay, 4 or 3 example 3 मैंने ऐसा एक सीक्वेंस बनाया Sn is equal ऐसा बनाया कि
सो एक अलग सा सेट मानते हैं, देखिए एस एन इज इक्वल 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n, like that. n belongs to natural number. ये कैसा सेट है? तो Sn, this is the sequence, this is equal 1 by small n, 1 by small n, where small n belongs to the set of natural number. Okay, so this is the sequence. Okay, अभी ये 4 एग्जाम्पल मैंने दिया, तो मैं आपको अभी एक फाइनाइट एग्जाम्पल भी दिखाना चाहता हूँ, जो फाइनाइट जो सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस है. तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि एस एन इज इक्वल 1, 1, 1, 1, so this is Sn, this is the sequence, this is equal to 1. ये फर्स्ट टर्म भी इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म इज 1. तो n किसी भी n के वैल्यू के लिए ये सीक्वेंस जो होगा वो 1 ही होगा. दिस इज ए कॉन्स्टेंट सीक्वेंस. ये फाइनाइट सीक्वेंस नहीं है, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस. बट इन ए सीक्वेंस दिस इज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ, ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है, Sn इज इक्वल टू 1. बट मैंने अगर ऐसा सीक्वेंस लिख दिया Sn इज इक्वल, ये डॉट डॉट मैंने दे दिया तो ये इनफाइनाइट ही बन गया. मैंने अगर लिखा कि Sn इज इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे सास्टेड होगा. ये एक बहुत अच्छा बात है, यहाँ पे ये लिखना गलत है. सास्टेड Sn सास्टेड, ये मैंने 2,2,2 बस लिख दिया. ये 3 नंबर्स वाला ये सीक्वेंस है, एंड दिस इज ए फाइनाइट सीक्वेंस. इट हैव ओनली 3 मेंबर्स, फाइनाइट कॉन्स्टेंट सीक्वेंस. अगर मैंने इससे लिख दिया कि 2, 2 नहीं दिया, तब जैसा भी नंबर दे सकते हैं. यहाँ पे 2, 3 और आपको मन चाहा तो 5 दे दिया, उसके बाद 9 दे दिया, कोई बात नहीं. 11 दे दिया तो -1 भी दे दिया, कोई बात नहीं. ये भी एक सीक्वेंस है, बस इतना ही नंबर से ये फाइनाइट सीक्वेंस है. हाँ, हो सकता है आप जैसे चाहे ये फाइनाइट सीक्वेंस किसी भी तरह का आप बना सकते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस. बट ये बात नहीं कि ये लिस्ट होना चाहिए. दिस शुड बी एन अरेंजमेंट, दिस शुड बी रियल नंबर्स. बस अभी आपको समझना क्या चाहिए, एग्जाम्पल्स हो चुका है. अभी रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस. एक सीक्वेंस के रेंज क्या होता है? रेंज, मैंने एक सीक्वेंस ले लिया Sn इज इक्वल -1 टू द पावर n+1. ओके, ये सीक्वेंस मैंने मान लिया. सो Sn सीक्वेंस का टर्म कैसे आएगा? देखिए, इस सीक्वेंस का टर्म ऐसे आएगा. पहले टर्म तो देगा -1 टू द पावर 1 + 1, दैट मीन्स 2 होगा. सो -1 2 टू द पावर -1 टू द पावर 2, सो दिस विल बी 1. सेकेंड टर्म 2 + 1 -1 टू द पावर 3, दैट विल बी -1. उसके बाद 1, उसके बाद -1, लाइक दैट. 1 - 1, 1 - 1, 1 - 1. So this will be a sequence, range of a sequence. So 1 - 1, 1 - 1, 1 - 1, ऐसे मैंने लिख लिया. ये Sn जो है ना, दिस इज द सीक्वेंस Sn. तो रेंज क्या होगा? रेंज, अभी रेंज ऑफ द सीक्वेंस Sn, दिस इज ए सेट होता है. रेंज ऑफ ए सीक्वेंस इज ए सेट containing one member of the sequence once in the set. ये यहाँ पे 1 टर्म 1 जो है ना, 1 देखिए -1 भी देखिए, -1 कितना बार है इस Sn सीक्वेंस में? -1 कितना टाइम्स है? इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स -1 है. लेकिन जब आप रेंज लिखिएगा तो रेंज में, इस सीक्वेंस में, रेंज सेट में, तो रेंज ऑफ Sn जो जब आप लिखने की ओके, जब आप Sn के रेंज लिखिएगा तो यहाँ पे -1 सिर्फ 1 टाइम्स आ सकता है, -1 सिर्फ एक बार आ सकता है. और 1 कितने टाइम्स है? इनफाइनाइट मेनी टाइम्स है, लेकिन 1 सिर्फ एक बार आएगा. 1
यहाँ पे -1 1 सॉरी लिखिए 1, -1 बस दिस इज ए सेट and this is set containing only 2 numbers but sequence is infinite sequence but range of the sequence is finite तो ऐसा नहीं है कि रेंज ऑफ द सीक्वेंस हर बार फाइनाइट ही होगा कभी कभी रेंज ऑफ द सीक्वेंस कभी कभी नहीं बहुत टाइम्स ऐसा हो सकता है रेंज ऑफ द सीक्वेंस इनफाइनाइट भी है राइट रेंज ऑफ द सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है जैसे द सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इट हैव द रेंज in the range set of the sequence of the natural number it has infinitely many numbers अगर एस एन इज इक्वल ये है एस एन मैंने मान लिया कि अगर एस एन इज इक्वल वन प्लस एन ये भी एक सीक्वेंस हो सकता है टर्म कैसे आएगा एस एन such that n is equal 1 के लिए 2 n is equal 2 के लिए 3 n is equal 3 के लिए it will be 4 5 लाइक दैट 2 से शुरू होता है और जितना भी नेचुरल नंबर है वो ऐसे चला जाएगा so minus sn is equal to this so this is the range of this sn here ये सेकेंड एग्जांपल में तो यहाँ पे जो रेंज होगा रेंज ऑफ sn जो होगा sn सीक्वेंस के जो रेंज होगा वो 2 3 4 5 लाइक दैट इनफाइनाइट नंबर सब मेंबर्स है तो रेंज समझ में आ गया और फिर बाउंड्स ऑफ ए सीक्वेंस ओके बाउंड्स ऑफ ए सीक्वेंस बाउंड्स ऑफ ए सीक्वेंस बाउंड्स ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है इफ x is any member of the sequence of a sequence ये लिखिए of if x is any member of a sequence Sn एक सीक्वेंस है उसके x is any member of a sequence Sn of a sequence Sn okay if x is any member of a sequence and x is less than equal capital N less than equal capital N for all x belongs to okay that's Sn तो अभी इसे समझिए ये कुछ x के नहीं हाँ मतलब Sn जो सीक्वेंस है सीक्वेंस में जितना भी मेंबर्स है वो हर एक मेंबर्स से मेंबर जो है ना वो कैपिटल M से होता है तो हम दिस इज बाउंडेड अबव every members of the sequence is less than capital M or equal to capital M then we will call the sequence is bounded above आप इस डेफिनेशन को ऐसे लिखेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा इस x को नहीं लाके ऐसे लिखेगा बाउंड्स ऑफ ए सीक्वेंस में तो बाउंड्स ऑफ ए सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है पहले जो है ना वो बाउंडेड एबव हो सकता है दिस इज बाउंडेड एबव हो सकता है बाउंडेड एबव दूसरा जो हो सकता है वो बाउंडेड बिलो हो सकता है एबव ए बी ओ भी बाउंडेड एबव दूसरा हो सकता है बाउंडेड बिलो एंड थर्ड जो हो सकता है वो है बाउंडेड सो बाउंडेड एबव कैसे हो सकता है a sequence Sn is first bounded above
if Sn is less than equal k less je hobe many capital M liat hobe k less than is equal k for all n belongs to n. That means sequence के हर एक term S1, S2, S3, S4 हर एक term जो है ना वो less than equal k है where k is a real number. Then we call that sequence Sn is bounded above. And okay, bounded above this. K is called upper bound. Upper bound of Sn, sequence की upper bound. Second, bounded below. If Sn, that means every members of this sequence is greater than is equal small m. अभी लीजिए ऊपर k लिया था अभी m लीजिए. For all small n belongs to capital N. That means S1, S2, S3, Sn हर एक term जो है ना वो small m से बड़ा है या फिर small n है equal है. So this is bounded below. Sn is called bounded below. Okay, small m is called lower bound. Lower bound of Sn. Third, that is bounded. If Sn is both bounded above and bounded below, अगर दोनों हैं, if Sn is both bounded above and bounded below, then Sn is called bounded sequence. Sn is called bounded sequence. Okay, so bounds of a sequence हो चुका है. अभी क्या बात है convergence of sequence. Last topic, बहुत गौर से समझे इस टॉपिक को. स्टार मार्क लगा दिया है. Convergence of a sequence. Convergence क्या होता है? डेफिनेशन लिखते हैं पहले. कन्वर्जेंस का मतलब ऐसा होता है अगर सीक्वेंस का हर एक टर्म किसी एक रियल नंबर की तरफ अप्रोच अगर कर रहा है तो सीक्वेंस को उस रियल नंबर में कन्वर्ज हो रहा है ऐसा हम कहेगा. और उस रियल नंबर को हम लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऐसा बोल सकते हैं. बात क्या है, अगर किसी भी एक सीक्वेंस Sn जैसे ही n इंक्रीज होते हैं, जैसे ही सीक्वेंस Sn में स्मॉल n जो है ना जैसे ही इंक्रीज होते हैं, ओके, ऐसे ही सीक्वेंस का अगर हर एक टर्म किसी एक रियल नंबर L की तरफ अगर अप्रोच होती है, किसी एक रियल नंबर L के पास में जा रहा है ना, तो वो सीक्वेंस जो होगा कन्वर्ज होगा उस रियल नंबर L में. तो उसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन को. ए सीक्वेंस Sn is called, okay, is said to be, okay, is said to be converges to a real number L as n increases. A sequence Sn is said to be converged to a real number L. ये मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखूंगा अभी. Converges to a real number L if modulus of Sn minus L, right, उस टर्म और S
इन दोनों का डिफरेंस जो है ना एस एन जो है ना वो nth टर्म है, सीक्वेंस के nth टर्म और रियल नंबर दोनों के बीच का जो गैप है, ओके दिस इज लेस देन फॉर एनी एप्सिलॉन, ओके फॉर एनी एप्सिलॉन के लिए ये गैप जो है ना वो स्मॉल होना पड़ेगा, ओके ये रियल नंबर L इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जैसे ही जितना भी स्मॉल में हाउ एवर पॉसिबल यू कैन टेक, हाउ एवर स्मॉल यू कैन टेक फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउ एवर पॉसिबल फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 Sn minus L लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है ना बहुत दिस कैन बी वेरी वेरी स्मॉल एंड Sn और L दोनों का गैप जो है ना वेरी वेरी स्मॉल नंबर से भी स्मॉल है। अब जितना एप्सिलॉन स्मॉल होगा उसके लिए ऐसा एक n एग्जिस्ट होगा साथ साथ Sn माइनस L इज लेस देन दैट एप्सिलॉन। बहुत स्मॉल नंबर से भी Sn और L का गैप स्मॉल है, दैट मीन्स Sn इज एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू L, Sn इज converges to L, Sn the limiting value of Sn is L, okay Sn minus L is less than epsilon, Sn minus L less than epsilon for any epsilon greater than 0 there exists small n belongs to n, मतलब ऐसा एक रियल नंबर ऐसा एक नेचुरल नंबर स्मॉल m एग्जिस्ट होगा, there exists for any epsilon greater than 0 there exists small m such that for all small n which is greater than m, okay greater than लिख सकते हैं, greater than equal भी लिख सकते हैं, आप जो चाहे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ये greater than equal भी लिख सकते हैं for any, okay definition a sequence Sn is said to be converged to a real number L if for any epsilon greater than 0 there exists small m which is a natural number such that for all n greater than is equal to m Sn minus L less than epsilon। ये small m जो है ना ये small m depends upon epsilon, small m depends on epsilon, जैसे जितना ही epsilon जितना small होगा small m उतना ही बड़ा natural number होगा, राइट और स्मॉल ओके जैसे ही एप्सिलॉन उससे भी स्मॉल होगा स्मॉल m उससे पहले वाला स्मॉल m से भी स्मॉल होगा, बड़ा होगा, ओके तो स्मॉल m जो है ना वो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके एंड उस ऐसा एक टर्म मतलब अब इसे समझिए इस S1 S2 S3 ये सीक्वेंस जो है ना धीरे धीरे दिस इज ग्रेजुअली अप्रोचिंग टू द रियल नंबर L, ये L नहीं हुए, ओके ये जाते 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 ये Sm है, उसके बाद Sm+1 है, उसके बाद Sm+2 लाइक दैट, सो दिस इज ओके ये Sm है, ये m+1 क्या है, दिस इज ग्रेटर देन m, सो दिस इज इक्वल टू n, दैट मीन Sn टर्म कहाँ से शुरू होगा, ये Sn है, Sn यहाँ पे हुई, सो n इज ग्रेटर देन m, सो ग्रेटर देन m मतलब ये तो m है, सो ये यहाँ से शुरू होगा Sn ग्रेटर देन इक्वल n, सो मतलब ऐसा है कि अब जैसे ही एप्सिलॉन जितना स्मॉल होगा Sm इस इतना ही इधर इस वाला साइड में जाएगा, राइट ऐसा एक टर्म है जिस टर्म्स के बाद ऐसा एक टर्म है Sm आफ्टर एवरी टर्म आफ्टर Sm विल कन्वर्जेस टू ए रियल नंबर L, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ रियल नंबर L है और इसका जो टर्म जो है ना वो L के अप्रोक्सीमेटली L के बराबर आने लगेगा इस टर्म से टर्म के बाद, ओके ये ब्रैकेट में रहने दीजिए, सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0 Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, इसको ऐसे भी समझा जाता है एस n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे ही n बड़ा हो जाता है Sn जो है ना वो अप्रोचेस टू Sn टेंस टू इन्फिनिटी Sn टेंस टू L, ओके जैसे ही s स्मॉल n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn अप्रोचेस टू L, मतलब स्मॉल n जैसे ही स्मॉल n ये सीक्वेंस का जो टर्म जैसे ही आप है ना इन्फिनिटी के क्लोज जाते रहेगा, जैसे ही n विल बी इंक्रीजिंग Sn विल बी कन्वर्जेस टू L,
So we called अभी भी कहते हैं कॉल नहीं we call this real number L, okay, this real number L is called limit of the sequence के लिमिट कहाँ जाता है. This L is called limit of the sequence SN sequence का लिमिट कहाँ जाता है इस रियल नंबर L को. ओके ये हो बात. ओके इतना ही बात है. So this is convergence of a sequence. For example आप ऐसा ये देख सकते हैं. For example you can see an example. The sequence 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by n. Okay? This sequence converges इसे लिखा जाता है Sn. Okay? Converges to 0. जैसे ही n increase होगा, this value 1 by n will be decreases and 1 by n cannot be negative and it is approaching to 0. So converges to 0. Sn is equal 1 by n. N belongs to n is converges to 0. 0 is the limit of the sequence Sn. Limit of Sn n tends to infinity is equal 0. Limit of the sequence is 0. So this is the convergence of a sequence. I hope you understand clearly.